वैष्णवजन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णवजन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे केणी रे। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे केणी रे। वाचे काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टिने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे। समदृष्टिने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे। जीवा थकी असत न बोले पर धन नव झले हाथ रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग जेना मन मारे। राम नाम शु ताड़ी लागी सकल तीर्थ तेना तन मारी। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। बन लोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निवारा रे। बन लोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निवारा रे। भणी नरसिंह तेनु दर्शन करता कुल एक तेरा तारा रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे
बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गांधीमय वातावरण में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे श्री अनामिक शाह, वाइस चांसलर गुजरात विद्यापीठ का भी हम मंच पर यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सर्वप्रथम अब स्वागत भाषण के लिए हम आमंत्रित करेंगे सूचना और प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा जी को। अभी कुछ दिन पहले ही सुनील अरोड़ा जी ने सूचना प्रसारण सचिव का पदभार संभाला है, वो आए और हमें संबोधित करें। Honorable Mr. INB Shri Arun Jaitley ji, Honorable Minister of State INB Shri Rajyavardhan Singh Rathod ji, Hila Bhatt ji, all the dignitaries on the dais, our senior colleague and mentor Shri BP Singh Saab, my colleagues from the ministry, all functionaries from Gandhi Foundation. The collected works of Mahatma Gandhi, published by Publication Division, is a monumental document of Gandhiji's words, which he spoke and wrote throughout his life. The collected works CWMG Original KS Edition, called so after Professor K. Swaminathan, the chief architect of the original series, had taken about 38 years in the making, beginning 1956 to 1994. They are a series of 100 volumes running into over 55,000 pages, intricately connected across the series as an integrated whole. The first chief editor was Shri Bharatan Kumarappa, followed by Shri Jayaram Das Daulatram. Both were eminent Gandhian scholars. However, their tenure was too short, almost 3 years. The major work was done under Shri K. Swaminathan, who became chief editor in 1960 and worked till 1993 on this. He was born in 1896. He taught English literature at Madras Presidency College. The former president, Shri K.R. Narayan, Dom Mores, and generations of civil servants and others from South India studied under him. It was said that wherever he taught, it became Oxford. When Gandhiji visited South India in 1915, he met him there, and thereon it was a lifelong association. He was based out of Delhi till 89, then based out of his home in Chennai till he passed away in 94. He donated his house to the Gandhi Mission in Chennai for Gandhian activities. He was an erudite scholar, a gigantic institution himself. Without his umbrella contribution, these works perhaps may not have seen the light of the day. Now, with the efforts of Gandhi Peace Foundation and all others, the electronic master copy, volumes 1 to 100, has been prepared in the form of a searchable PDF beta version, matched with the original KS edition word by word, verified with the original source document. It retains the original architecture, volume structure, font structure, line structure, page structure, including its visual look fully and loyally. Sir, actually, I and my colleagues came here yesterday in the run-up to this function, and I felt we should have come here much before, and we should be coming here again and again and again. We would be too happy to the publication division, the ministry, our colleague Sadhana and our colleagues who have done so much on this. We would be too happy, sir, to do anything further with Gandhi Peace Foundation to carry forward the message of Mahatma and other illustrious sons of India through this foundation and through the publication division. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद सुनील अरोड़ा जी। और अब मैं निवेदन करूंगी जानी मानी गांधी सेविका CWMG के ई संस्करण के दिशा निर्देशन के लिए बनी कमेटी की सदस्य, गांधी जी के लेखन को सहेजने के लिए समर्पित दीना पटेल जी को कि वो CWMG की DVDs लोकार्पण हेतु सूचना और प्रसारण मंत्री और वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री माननीय अरुण जेटली जी को भेंट करें। और हम निवेदन करेंगे अरुण जेटली जी से कि कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के अंग्रेजी ई संस्करण का अब लोकार्पण करें। चार वर्षों से भी अधिक समय में तैयार इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कॉपी में 1 से 100 वॉल्यूम्स हैं जो सर्चेबल PDF बेटा वर्जन हैं। और गांधीवादी विचारकों और विद्वानों के दिशा निर्देशन में इस महत्वपूर्ण कार्य को किया गया है जो अब आप सबके सामने है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सहेजने के लिए गांधी जी के कहे हुए, बोले हुए संभवतः सभी शब्दों को शामिल किया गया है और मूल प्रति के अनुरूप उसकी विषय वस्तु हूबहू उसी की कॉपी। और हम निवेदन करेंगे साथ ही CWMG के ई संस्करण को गांधी हेरिटेज पोर्टल पर अपलिंक कर इसका भी आप शुभारंभ करें। गांधी हेरिटेज पोर्टल पर ये अपलिंक इस समय माननीय अरुण जेटली जी के हाथों। गांधी हेरिटेज पोर्टल पर जाकर अब आप गांधी जी की विरासत के दर्शन के साथ साथ CWMG के इस ई संस्करण को भी कहीं भी कभी भी आप देख सकते हैं। और अब हम निवेदन करेंगे सूचना और प्रसारण, वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री माननीय अरुण जेटली जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर बैठे हुए महानुभाव और मित्रों, आज एक शुभ अवसर है कि कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी जी कि सन 1884 से लेकर 1948 तक गांधी जी ने जो जो बोला, जो जो लिखा, उसके कंप्लीट कंसोलिडेटेड वर्क्स जो 1994 में प्रकाशित हुए थे पब्लिकेशन विभाग द्वारा अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में, आज उसका डिजिटल वर्जन हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। ये डिजिटल वर्जन कुछ समय पहले तैयार हुआ था और इसको औपचारिक रूप से आज पूरे देश और विश्व के सामने हम लोग रख रहे हैं। ये एक CD के रूप में भी उपलब्ध होगा और जिन लोगों के पास अवसर मिलेगा इसको लेने का, ये एक प्रकार से कलेक्टर्स आइटम है। और उसके साथ साथ ये मुझे बताया गया कि अब से नेट पर भी उपलब्ध होगा कि पूरे विश्व में कोई भी कहीं गांधी जी के संबंध में उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, कोई क्रॉस रेफरेंसेस चाहें तो बहुत सरलता से उनके लिए उपलब्ध होंगे। मेरे लिए व्यक्तिगत ये सौभाग्य का विषय है कि इस वर्ष गांधी जी
से संबंधित 2 कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। एक तो आज है जब गांधी जी के जितने भी लेख और वचन हैं, एक प्रकार से उनको इमोर्टलाइज किया जा रहा है डिजिटल फॉर्म में। और कुछ महीने पहले अपने देश की तरफ से मुझे लंदन में जब पार्लियामेंट स्क्वायर में गांधी जी का स्टैचू स्थापित किया गया तो उस कार्यक्रम में भी देश की ओर से जाने का अवसर मिला था। सच में ऐसा व्यक्तित्व जो मौजूदा शताब्दियां जो रही हैं, शायद उस कद का, उस दर्शन का और इतनी प्रेरणा देने वाला व्यक्ति समाज में कोई दूसरा उभरा हो, ऐसी कल्पना भी नहीं होती। और गांधी जी की जो वर्सेटिलिटी थी, केवल दृष्टिकोण की नहीं, जितना कुछ वो बोलते थे, लिखते थे और जिन तर्क और विचार के आधार पर उभरते थे, वो आज की पीढ़ी में प्राप्त किसी में हो जाए, ये लगभग संभव नहीं दिखता। वो मेडिसिन पे भी लिख सकते थे, आर्थिक विषयों पे भी लिखते थे, पढ़ाई से वकील थे, सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित राजनीतिक विषय, सामाजिक विषय, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, धर्म, शायद कोई विषय ऐसे हो जिस पे उन्होंने लिखा ना हो या बोला ना हो। और इतनी बड़ी वॉल्यूम्स में उनका पूरा दर्शन समा जाए, ये भी अपने आप में संभव नहीं है। कई बार इतने वर्षों के बाद ये भी अपने आप में शोध और चिंतन का विषय है कि गांधी जी की सच में ताकत क्या थी। अपने जीवन के हर पहलू में नैतिकता को एक हथियार बना लेना और किसी भी संघर्ष में उस स्तर को कमजोर ना होने देना, हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड अपनी तरफ रहे और फिर उस ताकत के साथ अपनी बात करना, ये उनकी एक क्षमता थी। क्या केवल गांधी जी के आंदोलन की वजह से एक विदेशी हुकूमत घबरा गई और उस आंदोलन की वजह से गांधी जी ने उनको बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया? Did he push the British out? Or did he create a moral environment in which the British had to leave themselves? शायद दूसरा तर्क अपने आप में ज्यादा सत्य होगा। मैं जब इस वर्ष मार्च के महीने में लंदन गया तो उनके स्टैचू की वहां पार्लियामेंट स्क्वायर में स्थापना थी। तो जो वहां गांधी जी का स्टैचू लगा, उसमें ठीक उन्होंने वही छोटी धोती अपनी पहनी हुई है और बेयर चेस्टेड एक शॉल लिया हुआ है। जब वो डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब गए, और उस वक्त
उनके संबंध में जितने भी लोग वहां बोले या कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, हर एक को इनके व्यक्तित्व के बारे में एक अलग तर्क देने को था। बहुत सरलता से अपनी बात कह जाते थे और फिर उसका गहरा अर्थ होता था। जब हम डाउनिंग स्ट्रीट से पैदल पार्लियामेंट स्क्वायर की तरफ चल रहे थे, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई छोटा सा डिस्टेंस था, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं श्री डेविड कैमरून, वो गांधी जी की आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे चर्चा करते हुए जा रहे थे। और उन्होंने अपने भाषण में भी जिक्र किया, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा था कि बाद में उनके संबंध में कहा गया, द हाफ नेकेड फकीर, चर्चिल ने कहा। लेकिन उस व्यवस्था से भी वो उस ब्रिटेन को एक संदेश देना चाहते थे। तो जब वो डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकले और ब्रिटिश एम्परर को मिलने जाने वाले थे, तो उस वक्त का जो मीडिया होता था वो डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़ा था। मतलब उनके हर जीवन के बारे में काफ़ी जगह ये लिखा गया है। तो डेविड कैमरून उसको पढ़कर आए थे, तो उन्होंने जिक्र भी किया और मुझे सुना रहे थे कि व्हाट वाज दिस जेंटलमैन्स आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा, मिस्टर गांधी, आर यू नॉट अ शेड अंडरड्रेस्ड फॉर द ब्रिटिश विंटर? So he wanted to convey a larger message. He said it doesn't matter. In any case, His Majesty will be dressed for both of us. कि इस देश की क्या हालत आपने की है, शायद आज के मौजूदा कम्युनिकेशंस में भी राजनीतिक विचार रखने की ये क्षमता की एक वाक्य में इतना कुछ कह दे। तो ब्रिटिश मीडिया ने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर व्यू ऑन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन? अब वहां जाकर आलोचना करना, मेहमान है, उचित नहीं था, प्रशंसा करना नहीं चाहते थे। तो आज के युग में हम टेलीविजन पर देखते हैं कि किस तरीके से लोग बाहर निकलते, तो उनकी तरफ देखे और कहा नॉट अ बैड आइडिया, और ये कहकर आगे चल दिए। और अगर ये सारे हम लोग कंप्लीट वर्क्स अध्ययन करें, जिन लोगों को और जिन गांधीयन स्कॉलर्स ने इस पे पूरा जीवन लगाया है, 38 साल लगे इनको कंसोलिडेट करने में, तो लगभग हर विषय पर उनकी पकड़, उनका ज्ञान और उनका एक विजन था। और गांधी जी की वो जो महानता थी, जिसकी वजह से इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष बने इस युग के, वो उसमें से अपने आप में प्रकट होती है। और मेरे लिए तो ये भी सौभाग्य है कि इस स्थान पर आजकल हम लोगों का आना कम होता है, लेकिन 1970 के दशक में लगभग मैं रोज यहाँ आया करता था। जब जयप्रकाश जी अपने आंदोलन के दौरान दिल्ली में रहते थे, तो साथ में जो बंगला था, राधा कृष्ण जी के साथ वहीं रहते, रुकते थे। यहीं से अरेस्ट हुए थे जेपी, और इमरजेंसी लगने से 2 दिन पूर्व तक इसी कक्ष में उनकी सब नेताओं के साथ कंसल्टेशन बैठक होती थी, जिनमें मैं विद्यार्थी था, तो मुझे भी कई बार अवसर आने का मिलता था। तो उस आंदोलन का एक प्रकार से ये नर्व सेंटर था, ये कमरा, जिसमें आज ये हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। मैं जितने भी गांधीयन स्कॉलर्स
जिन्होंने इसमें योगदान दिया है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पब्लिकेशन विभाग की तरफ से इस डिजिटल फॉर्म में गांधी जी के कंप्लीट वर्क्स पूरे समाज के लिए उपलब्ध हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे समाज को बहुत समय तक इस ज्ञान का बहुत बड़ा लाभ होगा और इट्स अ ट्रेजर विच वी आर with almost no cost going to share with the rest of the world। और मैं एक बार फिर गांधी पीस फाउंडेशन का भी, गुजरात विद्यापीठ और जितने गांधीयन स्कॉलर्स, प्रोफेसर आयंगर, अन्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना योगदान देके इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जेटली जी। और अब गांधी जी की जीवन कथा नारायण देसाई कृत मारू जीवन एज मारी वाणी माई लाइफ इज़ माई मैसेज का अंग्रेजी अनुवाद श्री त्रिदीप सुरुद ने किया है, जिसे हम माननीय अरुण जेटली जी को यहाँ पर भेंट करेंगी। माननीय सुश्री ईला भट्ट जी, हम अनुरोध करेंगे ईला भट्ट जी से, जानी मानी गांधीवादी, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो ये माई लाइफ इज़ माई मैसेज भेंट करें माननीय अरुण जेटली जी को। और महत्वपूर्ण कार्य के चलते माननीय जेटली जी को अभी हैं, ओके, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषा के ई संस्करण को बनाने में एक महती कार्य और योगदान संपन्न कराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसे संभव कर दिखाया है और आज ये आप सबके सामने है। इसके निर्माण के दौर के अनुभवों को साझा करने के लिए अब हम आमंत्रित करेंगे ECWMG के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य, गांधीवादी चिंतक विचारक प्रोफेसर सुदर्शन आयंगर जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय मंत्री महोदय अरुण जेटली जी, आदरणीय मंत्री राठौड़ साहब, सेक्रेटरी INB मिनिस्ट्री, गुजरात विद्यापीठ की कुलपति ईला बहन भट्ट, हमारे कुल नायक जो हमारी परंपरा में हैं प्रोफेसर अनामिक शाह, यहाँ उपस्थित बहुत सारे गणमान्य अधिकारी लोग और आप सब प्रेमी, और आप सब के सामने थोड़ी सी बात, ये अंग्रेज़ी में लिखा था पर मुझे लगा कि शायद हिंदी तो हम सब समझ लेंगे, तो हिंदी में ही बात की जाए, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी ने भी बात हिंदी में रखी है। और ये कक्ष जिसके बारे में आदरणीय मंत्री जी ने बताया, आज भी इस कक्ष में कुछ चीज़ें गूंजती रहती हैं जो गांधी जी की याद ताज़ा करती हैं, उनके संस्कारों को, उनकी परिपाटी को आगे ले जाती हैं। तो ये कहानी बहुत छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, पर बता दें कि ये जो के स्वामीनाथन एडिशन की जो बात हुई है, ये मूलतः गांधी जी के, जो गांधी जी ने जो कुछ लिखा था उसका हर संभव शब्द सहेजने की जो बात थी, उसको सहेज करके 38 साल की लंबी अवधि में जो कुछ तैयार हुआ, वो उसी मूल स्वरूप में, उसी ईमानदारी के साथ उसका अगर डिजिटल संस्करण बाहर आए तो आने वाले सदियों तक इस बात को याद रखें कि गांधी जी ने मूल रूप में क्या कहा था। क्योंकि गांधी बोलने में जितना सरल थे, उस सरलता का कभी कभी कोई अर्थघटन और न हो जाए, इस मंशा से ही जब इसको हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं, तो एक तो ये भी हमारा मंशा था कि इस डिजिटाइजेशन के चलते एक ऐसी मास्टर कॉपी तैयार हो जो अलग अलग जगहों पर, अभिलेखागार में, राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी हो,
साबरमती आश्रम में भी हो, गुजरात विद्यापीठ में भी हो और प्रकाशन विभाग में भी हो, मंत्रालय में हो, ताकि कभी अगर कोई शंका खड़ी हो तो उसके मूल स्वरूप को पढ़ा जा सके। ये भी इसका एक आशय है। इसका आशय ये भी है कि इसमें से और प्रतियां भी जब चाहें तब छाप करके निकाली जा सकती हैं। मुद्रण का काम नई टेक्नोलॉजी के सहारे आसान हो रहा है, पर इस प्रक्रिया को करने में बहुत लंबा समय लगा। चूँकि ये 38 साल में बनी हुई, अलग अलग फॉन्ट में बिखरी हुई और अलग अलग तरीके से छपी हुई, इन सबको उसी मूल स्वरूप में लाने का काम ये अपने आप में टेक्नोलॉजिकली कठिन काम था। विषय वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, वो एक कठिन काम था और इस काम करने का बीड़ा उठाया। गुजरात विद्यापीठ ने स्वीकार किया कि वो ये काम करेगी, क्योंकि हमारी एक नैतिक जवाबदारी गुजरात विद्यापीठ की बनती है। बापू ने इस संस्था को 1920 में स्थापित की थी, आज उसके 100 साल होने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया में हमारा क्या योगदान हो, तो हम चाहते थे कि देश दुनिया के सामने हम रखें ये बात। और ये एक छोटी सी कमेटी, प्रोफेसर त्रिदीप सुरहुद जो साबरमती आश्रम के आजकल डायरेक्टर हैं, दीना बहन जिन्होंने इस काम का वाकई में बीड़ा उठाया है, और एक बड़ी छोटे छोटे बच्चों, कॉलेज जाने वाले बच्चों के साथ मिल कर के इन्होंने 8 साल तपस्या, एक यज्ञ बड़ा लंबा चला है, पर इसके अंदर हमारी जो बात मूलतः थी वो इतनी थी कि जो भी कुछ मूल स्वरूप में है उसको हम डिजिटाइज करें। ये सारी प्रक्रिया हुई है, क्योंकि ऐसे महानुभाव जब देश दुनिया में कुछ अपनी जो विरासत छोड़ जाते हैं, उन शब्दों की विरासत को भी उसी स्वरूप में पकड़ना ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये काम जो है, इस काम को अंजाम दिया है। हम ये भी चाहते हैं कि यही काम जिस तरह अंग्रेज़ी में संभव हुआ, चूँकि ये पहला काम भी अंग्रेज़ी में ही हुआ था, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, उसी परंपरा में उसी परिपाटी में हिंदी में भी काम हुआ, जिसका नाम था संपूर्ण गांधी वाङ्मय। और हम चाहते हैं कि हमारी ये गुजारिश है कि संपूर्ण गांधी वाङ्मय भी इसी तरह भारतीयों को और सभी हिंदी जानने वाले लोगों को भी इसी तरह से उपलब्ध हो। तो उस पर भी एक अगले चरण में कार्यक्रम करना चाहते हैं, और ये बात जो है हम आज इस मंच से रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस काम को करते हुए 8 साल लगे हैं, और ये मास्टर कॉपी अब उपलब्ध है, संग्रह के लिए उपलब्ध है और प्रतियां बनाने के लिए। इस मौके पर सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये काम सिर्फ गुजरात विद्यापीठ से अकेले के बूते का नहीं था। इसमें व्यक्ति जुड़े हैं, संस्थाएं जुड़ी हैं, और मैं सबसे पहले जो है वो प्रकाशन विभाग, भारत सरकार का नाम लेना चाहूँगा। और आज जो प्रकाशन विभाग में हमारी जो बहन है मुख्य, वो गांधी परिवार की ही पुत्री हैं। नमस्कार। चूँकि मंत्री जी को निकलना है, इसीलिए वो निकल रहे हैं और हम आगे अपना जारी रखते हैं।